Hello, my dear children. I hope you all are doing well. So today we are going to start our mathematics book, which name is Mathematics Whirlwind by Brain Root series for class 4. And today we are going to start our chapter 4 addition. So let's start with us. So children, let's talk about addition. What basically it is, okay? Addition is an operation in which one number is added to another number. Addition क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं. That is called addition. The number numerals to be added are called addends. जो भी नंबर ऐड किए जाते हैं उनको हम addends कहते हैं. And the number we get after adding the addends is called sum. और इन addends को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? That is called sum. All right. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. अगर हम एडिशन की बात करें, अगर हमें कोई भी डिजिट का रीग्रुपिंग नहीं करना है और हमें डिजिट्स को ऐड करना है, तो लेट्स लर्न अबाउट इट. इफ डिजिट्स आपको गिवन है 25812 एंड 323141. अगर आपको 2 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है, आपको इन्हें ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा? पहले इनको एक प्लेस वैल्यू के चार्ट में डिवाइड करना है. सपोज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and lakh. Both the digits we have put over here. We just have to do the addition. अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है. 2 + 1 3, 1 + 4 5, 8 + 1 9, 3 + 3 6, 5 + 2 7 and 2 + 3 5. All right. So I hope it is the easiest method you will learn here. So we have already got the answer. So our addition will be 3 5 9 6 7 5. All right, children. So it is the another method to do the addition. By using place value method, you can also do the addition in a very easy way. So my dear children, let's start with the book exercise. Exercise number 4.1. We will start with our question number 1. Add the following. हमें क्या करना है यहाँ पर? Addition करके दिखाना है. तो we will start with our A option. तो हमें क्या करना है? 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 4 + 2 6. So I hope it is very easy. There is no borrowing, no carrying. We just have to simply add the numbers. So by this method you have to do all the remaining 3 parts. Okay, my dear students. Now we will see question number 2. Again what we have to do, यहाँ पर already digits are already given. We just have to arrange them in a sequence and then we have to do the addition over here. So let's start. I will do one question for you all and the remaining part you have to attempt by your own. तो I will start. First of all हमें क्या करना है? जो भी digits given है उनको properly put करना है बेटा. Okay? So here we have put the digits and now we will do the addition. 4 + 5 9, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 1 3. तो आंसर will be 34,439. I hope you got the method. Now you have to solve the remaining questions. So my dear students, now we will read about addition with regrouping. कि हम regrouping को use करके किस तरीके से addition कर सकते हैं. Already few sums are given here. आपको example given है. 2 digits are given. We just have to arrange them in this method. तो हमने क्या किया? इनका just जो भी प्लेस वैल्यू थी उसको ऐड करके इनका जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया. ऑल राइट चिल्ड्रन. सपोज 8 + 5 13, 13 का 1 आपका क्या हो गया बेटा? अगर हम ऐड को वंस डिजिट्स को ऐड करना है, फिर आपको टेंस को ऐड करना है, फिर आपको 100 प्लेस वाली वैल्यू ऐड करनी है, देन आपको थाउजेंड्स प्लेस वाली वैल्यूज ऐड करनी है. तो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन डू द एडिशन इन अ वेरी इजी वे. ऑल राइट. So my dear children, now it's time to solve exercise 4.2. Again in the same method, few sums are given already here. You just have to simply do the addition in this sum. Again आपको क्या करना है? बहुत सारे digits given है, इन सबको आपको ऐड करके शो करना है. आपको यहाँ पर क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में find the sum of the following. आपको क्या करना है? इन सभी digits का आपको एडिशन करना है. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. सो एज आई हैव टोल्ड यू, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? दैट इज 1000. और आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है बेटा? 1 लाख.
Okay, so you just have to add both the addends and then you will find out the sum over here. All right children, if we will talk about which number is, आपको बताना है 649 more than इतना. आपको क्या करना है, जो डिजिट गिवन है अगर उसमें हम 649 क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर मोर देन की बात है तो एडिशन करते हैं और अगर लेस देन की बात होती है तो माइनस किया जाता है. ओके चिल्ड्रन, सपोज इफ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट डिजिट 48625, उसमें हमें मोर देन कितना बोला है बेटा, 4649. सो वी जस्ट हैव टू डू द एडिशन क्योंकि मोर देन वर्ड इज यूज्ड ओवर हेयर. 9 + 5 14, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, 6 and 6 12 + 1 कैरी 9 and 4. Answer will be 49274. All right children, so you have to attempt the remaining questions by your own. So children, now we will read about the properties of addition. अब हम क्या पढ़ेंगे, properties of addition. जब भी कोई हम addition करते हैं तो उसकी क्या क्या properties हमें ध्यान रखनी है, we will read about them. The properties of addition that you have learned in earlier classes for smaller numbers apply to bigger numbers also. जितनी भी small digits पे क्या होती हैं बेटा, चीज़ें apply होती हैं, उतनी ही properties bigger numbers पर भी apply होती हैं. The sum of two numbers does not depend on the order in which the numbers are added. अगर हम किसी भी दो नंबर्स के सम की बात करें तो वो किसी दूसरे नंबर के डिपेंड नहीं करता है. कैसे, लेट्स सी. यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है, आपको डिजिट्स गिवन है बेटा. यू जस्ट हैव टू डू द एडिशन. 9 + 3 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 + 8 13 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13 का 1 कैरी, 6 and 7 13, 13 में 1 ऐड किया 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 11 का 1 इज कैरी, 3 और 2 5 और 1 6. So answer will be this. So again we have to just start with the unit place or ones place. Okay children, and again we have to do the method. This is known as the order property or the commutative property. कौन सी property कहते हैं, order में हमें क्या करना है, addition करते जाना है. If we will talk about the second property, the sum of three numbers does not depend on the order in which the numbers are added. अगर हम 3 नंबर की बात करें, हम 3 डिजिट्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है बेटा, उस नंबर के जो ऑर्डर्स होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है. वी जस्ट हैव टू सिंपली ऐड फ्रॉम वंस प्लेस, देन टेंस, देन 100, 1000 एंड 10,000. हमें क्या करना है, सिर्फ एक एक साइड से डिजिट्स को पुट करना है और एडिशन करते हुए जाना है. राइट, thus we can add all the numbers in the same way. This is known group property or the associative property. इसको हम क्या कहते हैं, group property or associative property. Right children, I hope you understood. So my dear children, we will talk about exercise 4.3. So you just have to follow the all method that we have discussed in the chapter and you have to attempt all the sums given in this exercise. आपको यहाँ पर जितनी भी एडिशन की प्रॉपर्टीज आपने रीड की हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है और यहाँ पर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है बेटा उन्हें रीड करना है और उन्हें सॉल्व करना है. ओनली वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व ऑफ वर्ड प्रॉब्लम फॉर यू ऑल एंड द रिमेनिंग पार्ट यू विल बी एबल टू डू इट इन अ ईजियर वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो चिल्ड्रन, इफ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है, ऑलरेडी आपको बहुत सारी डिजिट्स गिवन है. देयर आर, यहाँ पर क्या है, जनरल इलेक्शन फॉर अ लोकसभा सीट 3 candidates secured this much and this much votes respectively. आपको क्या किया गया है, 3 कैंडिडेट्स थे बेटा, उन्होंने क्या क्या सिक्योर किया, एक ने इतना पॉइंट, एक ने इतना और एक ने इतना, तीनों ने अलग अलग सिक्योर किया. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तीनों ने कितने नंबर गेन किए ये आपको बताना है. तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, व्हेनेवर वी काउंट द टोटल नंबर्स वी जस्ट हैव टू डू द एडिशन. ओके, तो हमें क्या करना है, तीनों ही डिजिट्स को बेटा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है. 9 9 268 एंड 4 4 229. अब हमने क्या किया, इनको अरेंज कर लिया. नाउ वी विल डू द एडिशन ओवर हेयर. ऑल राइट, हमें क्या करना है, एडिशन करना है. तो आपको क्या करना है, पहले वंस प्लेस का, देन टेंस, देन 100, देन 1000 एंड 10,000. आपको क्या करते जाना है, सिर्फ सीक्वेंस में इनको एडिशन करते हुए जाना है. ऑल राइट चिल्ड्रन, so what will be the answer? Answer will be 5 over here. इसे ऐड करके क्या आएगा, 25. तो 5 यहाँ पर एंड 2 कैरी, 6 और 4 10 और 2 12, 12 में 2 ऐड किया 14 का 4 यहाँ पर और 1 कैरी, देन 2 3 6 और 1 7 एंड देन 9 और 4 13, 13 एंड 6 आपका बताना है,
19 will be here, 1 carry, and then 9 and 1 10, 10 or 9 19. So 199745, this will be your answer. All right children, so here we have done all the digits addition, and you have to do the all remaining sums by your own. So my dear children, now we will learn how to estimate the sum. किसी भी चीज़ का जो sum होता है डिजिट का, उसको कैसे estimate लगाया जाता है. Estimate the sum of the following, यानी इसकी जो डिजिट गिवन है बेटा, उनका हम estimate कैसे लगाएंगे. आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये ऑप्शन गिवन है, यहाँ पर सारे डिजिट्स आर ऑलरेडी गिवन ओवर है. तो आपको क्या करना है, पहले काउंटिंग करनी है. काउंट द नंबर ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस. कौन सी डिजिट्स टेंस प्लेस पर है, कितने हंड्रेड्स हैं, कितने थाउजेंड्स हैं, सबसे पहले आपको ये काउंट करना है. आपने यहाँ पर क्या किया, जैसे 8000 5 और 3 को ऐड किया. देन 600 हैं, क्योंकि 2 + 2 कितने सारे हैं यहाँ पर, 1 2. ठीक है, फिर यहाँ पर जितने भी हंड्रेड्स प्लेस वाली वैल्यू हैं सिर्फ उन्हें पुट कर लिया. पहले आपने थाउजेंड्स वाली डिजिट पुट कर ली, ठीक है. उसके बाद आपने 100 वाली डिजिट और फिर टेंस वाली डिजिट सिर्फ पुट कर ली. तो आपने क्या देखा यहाँ पर, 5 क्या है आपका 1000 है और 3000 है. तो 5 और 3 को ऐड कर लिया सिर्फ, ठीक है. ऐसे ही आपने 100 प्लेस पर देखा कि 200 है, यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 200 है. तो 3 टाइम्स आपने 100 वाली वैल्यूज़ ऐड कर ली. उसके बाद आपने क्या किया, टेंस, 23 टेंस आया आपका बेटा, क्योंकि क्या क्या है, 6 टेंस पर है, यहाँ पर 6 टेंस पर है, यहाँ पर 3 टेंस पर है, यहाँ पर 8 है. तो 6 6 3 और 8 को ऐड कर लिया. तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, 8830. राइट चिल्ड्रन, आपने क्या किया था, टेंस प्लेस पर भी एडिशन किया था. तो नाउ वी गॉट द सम, ये आपका एस्टिमेटेड सम आ जाएगा बेटा. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड. पहले 1000 प्लेस की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लो, फिर 100 प्लेस की वैल्यूज़ को और उसके बाद टेंस प्लेस की वैल्यू को, एंड देन वी विल डू द एस्टिमेटेड एडिशन ओवर हेयर. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो इन एक्सरसाइज 4.4 चिल्ड्रन वी हैव टू डू एस्टिमेटेड सम एंड द एक्चुअल सम. आपको क्या बताना है कि इस पूरी डिजिट को ऐड करके जो हमारा एक्चुअल सम आएगा वो कौन सा होगा. और अगर हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है तो उसके लिए आपको वही 100, टेंस और थाउजेंड्स वाली वैल्यूज़ को ऐड करना होगा. आपको देखना होगा कौन से डिजिट वंस पे है, टेंस पे है, थाउजेंड्स पे है और हंड्रेड्स पे है. ऑल राइट चिल्ड्रन, अगर मैं एस्टिमेटेड सम की बात करूँ इन फर्स्ट ऑप्शन, तो हमें सबसे पहले 1000 देखना है. तो यहाँ पर ये 1000 है, 9000 है, सो ओनली 2. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1000 प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लिया ओनली. उसके बाद हम 100 की बात करेंगे तो 9 6 1 1. तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, 9 + 6 + 1 + 1. ये सब आपके 100 प्लेस के हो गए. उसके बाद हमने 10th प्लेस देखना है, 2 1 2 0 6. तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, 2 1 + 2 + 0 + 6. तो इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो इट विल बी आर एस्टिमेटेड सम. ओके चिल्ड्रन, एंड इफ वी विल टॉक अबाउट एक्चुअल सम, तो आपको क्या करना है, सारी ही डिजिट्स को एक साथ सीक्वेंस में रखकर एडिशन करना है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम. ओके, आई होप यू गॉट द टॉपिक. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द रिमेनिंग सम बाय यूजिंग द सेम मेथड. सो चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू सॉल्व, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपको फिर से क्या करना है, ऐसे ही जो भी एडिशन है आपको इसको ऐड करके यहाँ पर सही ऑप्शन को मार्क करना है. आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट. इट इज़ अ सिंपल एडिशन मेथड दैट यू हैव टू अटेम्प्ट. यहाँ पर सब एडिशन के सम है. यहाँ पर आपको सम बताना है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. सो एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 10 और लार्जेस्ट होता है 99. सो आंसर विल बी 109. ओके चिल्ड्रन, so you have to follow the same method over here. So my dear children, I hope you like today's session. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for new videos.